नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु के प्लेस ग्राउंड में 6 नवंबर को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केपीसीसी द्वारा सम्मान। बीदर से 10,000 लोग होंगे शामिल, ईश्वर खंडरे ने कहा। राज्योत्सव पुरस्कार के लिए डॉक्टर बलबीर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। पूर्व कांग्रेस नेता अभिनेता से नेता बने पूर्व नौकरशाह कर्नाटक में भाजपा में शामिल। कर्नाटक के कलबुर्गी में 14 साल की बच्ची से रेप और हत्या। निवेश का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगार, भविष्य की प्रौद्योगिकी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। झारखंड ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी ने साधा निशाना। केरल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर लगाया राज्य में तस्करी करवाने का आरोप, जाने और क्या कहा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। इस माह की 6 तारीख को बेंगलुरु में त्रिपुरा वाहिनी प्लेस ग्राउंड में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा एआईसीसी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन एवं सम्मान करने की बात केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे ने कही। वह आज शहर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का 6 नवम्बर को बेंगलुरु में त्रिपुरा वाहिनी प्लेस ग्राउंड में सम्मान कार्यक्रम कर्नाटक कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस कार्यक्रम में बीदर जिले से लगभग 10,000 लोग शामिल होंगे। इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, विधायक रहीम खान, विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गीता चिद्री, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीनाक्षी संग्राम सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बेंगलूरिನ ಸರ್ವೋದಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ನೋಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ। 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 50,000ರಿಂದ 1,00,000 ಜನ ಹೋಗುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ। ಹೌದು, ಟೋಟಲ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ। ಕೆಕೆ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕೆಕೆ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ। ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್। ಈಗೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲಿದ್ರು? ಇವ್ರೇನಾದ್ರೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಪ್ರೂವರ್ ಆಗಿದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳಿದಾವೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು। ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರೊಮ್ಮೆ ಅಖಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ। ಹೌದು, ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ। 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದ್ದಂಗ ಎಲ್ಲವೂ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ, ಆ ಹುದ್ದೆ, ಈ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಸೀಮಿತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರ್ತಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಒಂದು ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹಾಲಿ MLA ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಲಿ MLA ಅವ್ರೇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತು, ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಹೌದು, ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಯುವ ಕಣ್ಮಣಿ. इस वर्ष 2022 का कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार हमारे शहर की गुरु नानक ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुद्वारा श्री नानक जीरा साहिब फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर S बलबीर सिंह को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह सम्मान स्वीकार करने के बाद आज शहर के गुरु नानक स्कूल में हमारे न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से बात करके उन्होंने बताया कि वह पहले भगवान के शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कर्नाटक सरकार का उनकी सेवाओं की पहचान करके पुरस्कार देने के लिए आभार व्यक्त किया। सिंह ने कहा कि यह पुरस्कार बीदर वासियों, संस्थान के कर्मियों सहित सभी लोगों के प्रयास के लिए दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी को गुरुद्वारा आकर आशीर्वाद लेने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर डॉक्टर S बलबीर सिंह की पत्नी और संस्था की उपाध्यक्षा रेशमा कौर ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर शहर में महिला ने सरेआम मचाया हंगामा। बीदर के भाजपा नेता मल्लेश के जन्मदिन के अवसर पर शहर के मेलू क्रॉस क्षेत्र में मल्लेश की पत्नी साधना ने जश्न के दौरान मचाया हंगामा, जबकि भाजपा के नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली और वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली सहित पुलिस की मौजूदगी में साधना ने अपने पति मल्लेश का अवैध संबंध रखने के लिए शोर शराबा करते हुए पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। इससे माहौल में तनाव पैदा हुआ और नेता और पुलिस साधना को समझाने का प्रयास करते रहे। वीडियो हुआ वायरल। ನಾನೇ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ರೋಡಿ ತಂದಿಟ್ಟ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನ ಕೇಳಿ ಹೋಗೋರಿ. ಇವತ್ತ ಕಟ್ಟಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರಿಲತ್ತ ಸುಳೆ ಮಗ ಹೆಂಡತಿಗಾರ ನೋಡ್ಲಕ್ಕ ಆಗಂದು ಕಟ್ಟಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರಿತಾನ ಇವ. ಹೆಂಡತಿ ಕಲೆ ಸಲ್ಲುಲ ಕಲ್ಸ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಇದ್ದೋ ಸಲ್ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋತಾನ ರಾತ್ರಿ ದೋಸ್ತ, ಆ ಹೆಂಗಸರ ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂತಾನ ಸುಳೆ ಮಗ ವೈನು. ಅವನೇನು ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರ್ ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋತಿ ಮೊಕ್ಕೋಲತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಡ್ತಾಳ ಗಂಡಸರ್ ಬಲ್ ಹೋಗೋಲತ್ತ ಬಿಡ್ಲತ್ತಿರ್ಬಿ ಸುಳೆ ಮಗ ನಾಟಕ ಮಾಡತ್ತಾನ. ಇವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾವಿ. CM ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀತಾನ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀತಾನ, ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀತಾನ. ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳಾಡ್ಲತ್ತ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಿಟ್ಟು ಊರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತ ನೀವು. अब समाचार राज्य के।
कांग्रेस के पूर्व नेता एसपी मुद्देहनुमेगौड़ा, अभिनेता से राजनेता बने शशि कुमार और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल कुमार बीएच गुरुवार को कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए, जहां लगभग 5 महीने में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील की मौजूदगी में उन्हें यहां राज्य मुख्यालय में पार्टी में शामिल किया गया। वरिष्ठ नेता और तुमकुर से पूर्व सांसद मुद्देहनुमेगौड़ा ने सितंबर में कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी। वह 2019 की लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के एकमात्र मौजूदा सांसद थे जिन्हें टिकट से वंचित किया गया था, क्योंकि पार्टी ने राज्य में अपने तत्कालीन गठबंधन सहयोगी जेडीएस को तुमकुर सीट सौंप दी थी। कलबुर्गी जिले के अलंग थाना क्षेत्र के कोरली गांव के बाहरी इलाके में मंगलवार शाम एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार अफजलपुर तालुका की 14 वर्षीय लड़की कोरली गांव में अपने रिश्तेदार के यहां रहती थी। वह मंगलवार दोपहर तक घर में थी और बाहर प्रकृति की पुकार का जवाब देने चली गई। उसका शव गांव के बाहरी इलाके में गन्ने के खेत में मिला था। सूत्रों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हाथ और पैर बांधे हुए थे। इसके बाद उसका यौन उत्पीड़न किया गया और बाद में उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची के साथ एक नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संबंध में कलबुर्गी की एसपी ईशा पंत ने बात की। कल आलन पुलिस स्टेशन में जो रेप एंड मर्डर केस माइनर का दर्ज हुआ था, इसमें जिसने ये कृत्य किया है वो व्यक्ति हमें मिल गया है, वो बालक मिल गया है। वो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, वो माइनर लड़का है 16.5 साल का, और उसने वो लड़की को देखा कि वो जा रही थी, संडास के लिए जा रही थी, तो ये देख के उसने फॉलो किया उसको। देखा आसपास कोई नहीं है, बात का उसने गलत फ़ायदा उठा के वो लड़की को फॉलो किया, तो लड़की देख के भागी तो उसको आगे जाके उसने पकड़ के उसको वहाँ पे एक शुगर केन फील्ड है, एक गन्ने का खेत है, वहाँ पे ले जाके उसने ये उसके साथ ये गलत घटना की, उसका रेप किया। और उसके बाद वहीं पे उसको ये डर था कि ये लड़की को अब ये घर में बता देगी करके उसने वहीं पे एक पत्थर था, पत्थर से उसके गर्दन के ऊपर वार किया। फिर उसी के ही टॉप से उसके गले को स्ट्रैंगुलेट किया। पीछे एक कैनाल है, वहाँ पे साफ़ करके अपने आप को अपने गोल घूम के वापस घर चला गया। किसी को बताया नहीं उसने, मगर हम पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला और उसको हमने बंधन में ले लिया। और फिर उसके बाद अभी इस केस में हम लोग जल्दी चार्जशीट करेंगे। 10 दिन के अंतर्गत हम लोग चार्जशीट करके ये केस हम जुडिशरी से बात करके जल्दी इसका ट्रायल ख़त्म करवाएंगे, फास्ट ट्रैक ट्रायल करवाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो डीजी एंड आईजीपी सर हैं, उन्होंने भी इस केस में रिवॉर्ड देने की घोषणा की है, क्योंकि 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस ने इसमें आरोपी का पता कर लिया, तो उन्होंने 1 लाख रुपीस का रिवॉर्ड देने का अनाउंसमेंट किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित होने के साथ 2022 संस्करण ने कर्नाटक को वैश्विक मंदी की प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण स्थिति में रखा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई GIM 2022 के पीछे 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन। सीएम ने कहा कि राज्य में निवेश का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और प्रौद्योगिकों में नेतृत्व बनाए रखना है। भारत विशेष रूप से कर्नाटक दुनिया भर के निवेशकों को आने और निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है और राज्य के नेता राज्य के लिए भविष्य की संभावनाओं के बारे में उत्साहित हैं। विजयनगर जिले के हरपनहल्ली तालुका के चन्नहल्ली टांडा में बुधवार को एक दुखद घटना में एक ही परिवार के 4 किशोर झील में डूब गए। मरने वालों में 17 वर्षीय अश्विनी, 14 वर्षीय अभिषेक, 19 वर्षीय काव्या और 14 वर्षीय अपूर्वा है। हादसा उस वक्त हुआ जब किनारे पर बैठा अभिषेक गलती से पानी में गिर गया। उसे बचाने के लिए उसकी बड़ी बहन अश्विनी ने झील में छलांग लगा दी और चारों डूब गए। पुलिस और दमकल कर्मियों ने बुधवार शाम शवों को बरामद किया। पुलिस ने कहा कि चारों को तैरना नहीं आता था और झील के पास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। घटना का पता तब चला जब झील के पास एक खेत में जा रहे कुछ ग्रामीणों ने किनारे पर कुछ कपड़े देखे तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने स्थानीय तैराकों को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झील के पास उस समय मातम छा गया जब मृतक के माता पिता और परिजन गमगीन थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888040334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है।
और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। यूपी विधायकों की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह जानकारी दी। बता दें कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सोरेन को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें समन भेजकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 11 बजे बुलाया गया था। सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, इस बारे में देर रात को फैसला किया गया। ईडी का नोटिस मिलने के बाद ही गहमागहमी शुरू हो गई थी। देर रात हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। आधी रात को यह खबर भी सामने आ गई कि सोरेन गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रायपुर जाना है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम से लौटकर आने और कानूनी सलाह लेने के बाद मुख्यमंत्री यह फैसला करेंगे कि ईडी को क्या जवाब देना है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर नियुक्तियों में उनके राजनीतिक हस्तक्षेप करने के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के आरोप को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह ऐसा एक भी उदाहरण सामने आने पर इस्तीफा दे देंगे। राज्यपाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, वामपंथी सरकार व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुलपतियों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि वहां आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को नियुक्त कर सकूं। अगर मैंने ऐसे किसी एक व्यक्ति को भी नामित किया हो या अपने पद का इस्तेमाल कर आरएसएस के ही नहीं बल्कि अन्य किसी को भी नामित किया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पर क्या मुख्यमंत्री आरोप साबित नहीं कर पाए तो इस्तीफा देंगे। खान ने यह आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य में तस्करी की गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है और ऐसे हालात में उनके पास हस्तक्षेप करने का आधार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तस्करी की सभी गतिविधियों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संरक्षण मिल रहा है। सीएमओ में बैठे लोग कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति को अपने कम योग्यता प्राप्त और अयोग्य रिश्तेदारों की नियुक्ति के लिए निर्देश देते हैं। मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण ओडिशा के आदिवासी लोगों के पारंपरिक लोक नृत्य धिमसा का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ जमकर डांस किया। इससे पहले भी राहुल गांधी तेलंगाना के गोलापल्ली में बतुकम्मा नृत्य करते नजर आए थे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, हमारे आदिवासी हमारे कालातीत संस्कृतियों और विविधता के भंडार हैं। कोमू कोया आदिवासी नर्तकियों के साथ मैचिंग स्टेप्स का आनंद लिया। उनकी कला उनके मूल्यों को व्यक्त करती है, जिनसे हमें सीखना और संरक्षित करना चाहिए। गोलापल्ली में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दौड़ भी लगाई थी। इस दौरान प्रदेश के कई सीनियर नेताओं ने भी उनका साथ दिया था। इससे पहले शनिवार को उन्होंने तेलंगाना के महबूबनगर शहर के धर्मपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यूपी के नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में पंजाब वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जलील खान की पत्नी की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नॉलेज पार्क थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जलील खान अपने परिजनों के साथ अलीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, तभी उनकी कार नोएडा एक्सप्रेसवे पर खड़े एक कैंटर से जा टकराई। सिंह के अनुसार हादसे में जलील खान की 60 वर्षीय पत्नी सीमा खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जलील खान, सिराज अहमद और कार चालक अब्दुल खान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपनी रैली में हुई फायरिंग में घायल हो गए हैं। इमरान खान के घायल होने की खबर आ रही है। इमरान खान पीएम पद से हटने के बाद से ही लगातार सरकार के साथ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों सेना के उच्च अधिकारियों को लेकर भी उनकी तरफ से बयानबाजी हुई थी। इसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी। फायरिंग में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गुजरावाला में हुए हमले में घायल हुए। उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। उनके दाएं पैर पर पट्टी बंधी दिखी गई। जब उन्हें एक
एसयूवी पर ले जाया जा रहा था। गोलीबारी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने इमरान खान पर तब गोली चलाई जब पूर्व क्रिकेटर अपने शहबाज सरकार के खिलाफ लॉन्ग मार्च के हिस्से के दौरान अपने ट्रक पर खड़े हुए थे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। देर रात तक दुबई में मना एसआरके का बर्थडे का जश्न, बुर्ज खलीफा पर दिखे पठान। अब समाचार खेल जगत की। पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री सहर शिनवारी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम चमत्कारिक तरीके से टीम इंडिया को हरा देती है तो वह जिम्बाब्वे की ही किसी युवक से शादी कर लेंगी। आखिर में समाचार बाजार की। सर्दियों में प्याज पर चढ़ेगा महंगाई का बुखार, उत्पादन 13% घटने का अनुमान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु के प्लेस ग्राउंड में 6 नवंबर को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केपीसीसी द्वारा सम्मान। बीदर से 10,000 लोग होंगे शामिल, ईश्वर खंड्रे ने कहा। राज्योत्सव पुरस्कार के लिए डॉक्टर बलबीर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। पूर्व कांग्रेस नेता अभिनेता से नेता बने पूर्व नौकरशाह कर्नाटका में भाजपा में शामिल। कर्नाटका के कलबुर्गी में 14 साल की बच्ची से रेप और हत्या। निवेश का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगार, भविष्य की प्रौद्योगिकी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। झारखंड ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी ने साधा निशाना। केरल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर लगाया राज्य में तस्करी करवाने का आरोप, जाने और क्या कहा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।